Hello and welcome in this new lecture on Marxism. And here we are going to discuss Bertolt Brecht. And first of all, come to know, we must know a little bit about his biographical details. First thing, he was born in 1898 and died in 1956. Remember the date. And he was a German theater practitioner, right? And a poet as well. He is basically known as a leading figure of epic theater and the so-called V effect. What is V effect? We'll discuss later. That is also known as alienation effect in English. And during the Nazi period is the time of Hitler. Bertolt Brecht lived in exile, first in Scandinavia during World War II in the United States, where he was surveilled by the ठीक है FBI ने इनको भी सर्विलांस पर ले रखा था बिकॉज ही वॉज जर्मन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई. बाद में ये वापस आए थे. इनके वर्क्स में देखेंगे तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. द फर्स्ट वन इज थ्री पेनी ओपरा एंड सेकेंड दैट इज मदर करीज एंड हर चिल्ड्रन. इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. बोथ आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइटल. दोनों के टाइटल खूब अच्छे जाते हैं. दैट इज दीज आर रिटन बाई विच राइटर. एंड मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर समरी पर्पज. तो ये दोनों आप याद रखिए. एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिक थिएटर. ठीक है, तो एपिक थिएटर है, बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने लिखा है. और थोड़ा सा डिटेल्स को हम लोग समझे भी हैं, बाद में भी समझेंगे. तो ये वर्क्स की इनकी पूरी लिस्ट है. दैट इज थ्री पेनी ओपरा, लाइफ ऑफ गैलीलियो. लाइफ ऑफ गैलीलियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इट आल्सो कैन बी आस्क्ड. एंड मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, गुड पर्सन ऑफ दिस वन, important work. And the next one is cousin Chalk Circle, Mr. Pontilla and his man Matti, and the irresistible rise of R2 वी. ये 7 वर्क्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पज से. एंड फर्स्ट थ्री और फोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Now come to his major concept, that is epic theater, and for what we are going to discuss him here in. The epic theater is actually a theatrical movement arising in the early to mid 20th century. The epic theater emphasizes the audience's perspective and reaction to the piece through a variety of techniques that deliberately cause them in individuality sorry in to individually engage in a different way. Actually ये जो term है epic theater is associated with the concept of tragedy and epic in Plato, in Platonic ideas. To Plato or Aristotle, sorry, not Plato only, in Aristotle's poetics, जो ट्रेजेडी और एपिक का कॉन्सेप्ट है is also associated to that. And here word epic is not concerned with its technical things, its technicality in literature, but epic is in somehow related to. यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज व्हेन यू सी द पोएटिक्स ऑफ Aristotle, there he talks about catharsis. Catharsis is actually a purgation of viewers, of the spectator. But here, this epic theater is somewhat extended this catharsis, and they are including a number of, including the so-called spectators and the viewers,
Through various techniques like using some flashcards, some banners, written material, or breaking the fourth wall. So the term breaking the fourth wall is also very important. What is uh, breaking of the fourth wall? Actually, breaking of the fourth wall is a thing that when will directly interact with the audience, with the spectator. Actually, what is the fourth wall? When we go to theater, we find that there were three parts of the stage. There were three stages, three parts where the curtains are set. ठीक है, तीन कर्टन अलग अलग लगे होते हैं और उन्हीं कर्टन्स के थ्रू जो है सीन्स को चेंज किया जाए. सपोज दैट जो थर्ड थर्ड वॉल होती है, जो थर्ड कर्टन होता है, सपोज दैट उसके पीछे अगर एक्ट चल रहा है, सीन चल रहा है, तो जो सेकंड या थर्ड वॉल है, सेकंड या थर्ड जो कर्टन है, उसके पीछे नेक्स्ट सीन की प्रिपरेशन चल रही है, सेटिंग होती है, बैकग्राउंड होता है. ठीक है, और जो कैरेक्टर्स अपने प्लेस पर सेट होते हैं, जैसे ही वो पर्टिकुलर सीन खत्म होता है, कर्टन हटता है, नेक्स्ट सीन आ जाता है. तो इसी तरह से चीज़ें जो है वो फिर से आगे मूव कर जाते हैं दर आफ्टर. इस तरह से चीज़ें, दैट इज थ्री वॉल्स बनाई जाती हैं, थ्री कर्टन्स बनाए जाते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले एंड चेंज ऑफ द. And the fourth wall is actually an invisible wall that separates the performers, actors from the spectators. फोर्थ वॉल जो होती है वो स्पेक्टेटर्स को एक्टर्स से अलग करती है. एक्चुअली जो परफॉर्मर है वो इस चीज को भूल जाता है, इस चीज को नहीं समझता है. दैट इज ही इज ऑन स्टेज एंड ही इज परफॉर्मिंग, एंड इफ देयर समवन इज वाचिंग. ठीक है, तो ये एक इनविजिबल वॉल होती है, एक इनविजिबल डिवीजन होता है इसके बीच में, जो स्टेज पर परफॉर्मर है और सामने बैठा स्पेक्टेटर है. दोनों के बीच में एक वॉल होती है. जो एक्टर है, जो परफॉर्मर है, वो स्पेक्टेटर से कभी भी कुछ इंटरेक्ट नहीं करता है. लेकिन जैसे ही कभी डायरेक्ट एड्रेस किया, डायरेक्ट इंटरेक्ट किया, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ. ठीक है, आजकल ये एक अच्छी टेक्निक है, खूब यूज की जा रही है, नॉट ओनली इन प्लेज बट आल्सो इन सीरियल्स, इन some of movies also. So I have seen such breaking of fourth wall in few of South movies, where in some movie I have seen that Brahmanand is directly addressing to the viewers, and in some Ram Pothanani is directly addressing to viewers. So and you have seen in Tarak Mehta, uh, उल्टा चश्मा ऑफ क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. उसमें भी आपने देखा हो दैट इज मिस्टर तारक समटाइम्स एड्रेसेस डायरेक्टली टू द ऑडियंस. तो वहां पर जैसे वो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ द. ठीक है, तो ये चीज जो है इसका यूज करके इस एपिक थिएटर के जो पर्पस है वो अडॉप्ट किया जा सकता है. ठीक है, आगे हम समझते हैं दैट इज द टर्म एपिक थिएटर कम्स फ्रॉम Erwin Piscator. Remember this point, that is very important. That is, the term epic theater has been coined by Erwin. Question पूछा जा सकता है, important question. Who coined it during the first year as director of Berlin's Volkswagen, that was 1927. वहां पर इन्होंने एपिक थिएटर टर्म को फर्स्ट टाइम कॉइन किया था. And one of Burchett's most important aesthetic innovations prioritized function over the astraled dictums
opposition, dictomous opposition between form and content. एक्चुअली जो बर्टोल्ड ब्रेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका एक डिक्टोमस अपोजिशन है, किसके बीच में? फॉर्म एंड कंटेंट। जो फॉर्म ऑफ ड्रामा है एंड द कंटेंट ऑफ ड्रामा, इनके बीच डिक्टोमस अपोजिशन। अपोजिशन इज डायरेक्ट अपोजिट टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, मेल, गर्ल, डे, नाइट, एटसेट्रा। तो ये जो है डिक्टमस अपोजिशन होते हैं, क्या? फॉर्म ऑफ द प्ले एज वेल एज कंटेंट ऑफ। ये एक जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस एपिक थिएटर, दैट इज आल्सो नोन एज वी इफेक्ट, दैट इज वर्फम डंक्स इफेक्ट। Perform Dunks effect is also known as V effect, okay, and is one of the significant characteristics of epic theater. ये epic theater की बहुत ही important characteristics एक है, and it made popular by Pratchett, and in English it is known as estrangement effect or alienation effect. Both words are mean very similar. Estrangement, that is making someone strange. The effect which makes someone strange, which makes spectators strange from the reality which is being present in the play. जो रियलिटी स्टेज पर प्ले की जा रही है उससे स्ट्रेंज बनाता है, क्या? कौन सा इफेक्ट? estrangement effect or Perform effect or alienation. Alienation, the word alienation comes from alien. Alien is the other, the unknown, the foreign, who comes from another planet, who is not familiar with us. That is alien. That is alienation effect, means making the thing unfamiliar to the spectators, the realities that are present in the play. जो प्ले में रियलिटीज प्रेजेंट की जा रही हैं उससे इनफेमिलियर बनाना क्या है? परफॉर्मडंग इफेक्ट है या फ्रिंजमेंट इफेक्ट है, एलिनेशन। क्लियर? याद रहेगा, ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछेंगे, मैचिंग में पूछ लेंगे, अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ, राइट रॉन्ग में पूछ सकते, किसी भी तरीके से पूछेंगे। तो इसको आपको याद रखना के संबंध में, बर्टोल्ट ब्रेस्ट एपिक थी। ठीक है, आगे देखेंगे। परफॉर्म्स इफेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय can be achieved is by having actors play multiple characters. एक ही कैरेक्टर जो एक्टर्स हैं वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्ले करके, या फिर रीअरेंज द सेट इन फुल व्यू ऑफ द ऑडियंस, सेट का है उसके अरेंजमेंट के थ्रू, एंड बाय द ब्रेक ऑफ द फोर्थ वॉल। ठीक है, फोर्थ वॉल क्या है उसको अभी हमने आपको समझाया कि फोर्थ वॉल जो है उसको ब्रेक करके जो है इस इफेक्ट को, जो एलिनेशन इफेक्ट है या एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट है या फिर जिसको हम वर्फन डंक्स इफेक्ट कहते हैं, ये अचीव किया जा सकता है। ठीक है, बाय स्पीकिंग टू द ऑडियंस। तो ब्रेक ऑफ द फोर्थ वॉल इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस। ठीक है, एंड लाइटनिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू एमुलेट द इफेक्ट। ठीक है, लाइटनिंग का भी, स्पेशल इफेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट है एंड परफॉर्मेंस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, दैट डिफेमिलियराइजिंग और एलिनेटिंग
the audiences, the spectators, from the reality of reality presented on the stage. जो रियलिटी स्टेज पर प्रेजेंट की जा रही है उससे एलिनेट करना ही क्या है, परफॉर्म ढंग से इफेक्ट है। उसको डिफरेंट टेक्निक यूज करके जो है जो ड्रामेटिस्ट है वो अचीव करता है, जो डायरेक्टर है वो। ठीक है, तो ये लगभग जो चीज़ें हम लोगों को समझनी थी के विषय में, दैट इज बर्टोल्ट ब्रेस्ट एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ए थिएटर। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बर्टोल्ट ब्रेस्ट एज राइटर भी इम्पोर्टेंट है, एज थियरिस्ट भी। And as theorist, his concept of epic theater is very important. And writer, his three penny opera and Mother Teresa। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाई विद लुई आल्तो। देखिए, हम एक एक सेपरेट राइटर्स को सेपरेट कर दे रहे हैं, भले ही छोटा छोटा लेक्चर हो रहा है, 20-20 का हो रहा है, इसलिए ताकि आपको कभी रिवीजन की जरूरत पड़े तो अलग से मिल जाए। रिवीजन के लिए आपको ये एक पर्टिकुलर राइटर क्या पढ़ना है आप, ठीक है? ये आपको हेल्पफुल होगा। आई होप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।